day, everyone, and welcome to Tech Accelerate, a virtual technology acceleration program that will provide you with in depth knowledge and insights into the latest trends and technology in the industry. I am Muskan Arora, and I'm thrilled to be a host and guide throughout the program. Ladies and gentlemen, get ready for an extraordinary machine learning session as we have not one but three exceptional speakers joining us today. Let me introduce you to the speakers for this amazing session. First, we have with us is Harshit Sharma. Harshit Bhaiya is a dedicated senior tech team member at NSCC. He dropped out of NISCR to pursue deep learning and neural reconstruction research. He's conducted 25 educational sessions, works as a medical clown, and used to provide counseling to patients with neural reconstruction, all in his commitment to make a positive impact. Next amazing senior with us today we have is Prasuk Jain. Prasuk Bhaiya, the organization head of NSCC, is a skilled and successful individual. With two Intellify All India wins and extensive experience in web development, he is a valuable asset to any team. His diverse skill set and dedication have earned him a reputation for excellence. Third amazing senior with us today we have is Ankit Gupta. Ankit Bhaiya, a senior tech team member at NSCC, is a skilled professional with a diverse background in machine learning, artificial intelligence, IT engineering, and app development. He completed ML and AI training from ICFOS and an Udemy course to enhance his skills. He has also completed internship as an ML and IT engineer, gaining valuable experience. Additionally, he's proficient in Flutter development, adding to his versatility. Now, not wasting much further time, I would like to hand over this session to the amazing speakers we have today. Thank you, Muskan. Thank you so much for this intro. So, today we all have accumulated here to learn about artificial intelligence and machine learning. So, most of you will be in your first years and thinking कि यार क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो उसके लिए तो टेक एक्सेलरेट एनएससी सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज कराया ही है कि तुम्हें एक बारी सारे डोमेन से इंट्रोड्यूस हो जाए. सो आज का सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे फोकस होगा, ये वाला सेशन. सो कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट. सो पहले देखते हैं आज हमारा एजेंडा क्या है, कि हम क्या क्या कवर करेंगे. सो हमारा सबसे पहला होगा कि यार मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है. एक बार ये पता चले उसके बाद ही तो हम परस्यू कर पाएंगे कि यार हमें ये करना है नहीं करना या क्या करना है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर जो होता है वो उसका होता क्या है, बेसिकली करना क्या होता है. यार ठीक है मशीन लर्निंग कर ली, बट जॉब में क्या करना होता है यार, वो हम देखेंगे इसमें. फिर उसके बाद हमारा आएगा रोड मैप और थोड़े बहुत रिसोर्सेज जो हमने तुम्हारे लिए इकट्ठे करे हैं उसके लिए. फिर हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस क्या है, कि यार क्यों सीखना चाहिए ये, कि यार ये हर बंदे को मेरे अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग एआई एक बार करनी जरूर चाहिए. चाहे तुमको परस्यू करो मत करो, बट एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है. उसके बाद हम देखेंगे डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क. इसका एक छोटा सा मतलब वो होगा तुम्हें इंट्रो, हर्षित भैया देंगे तुम्हारा इंट्रो ये, एंड इस पर तुम्हें सब समझ में आएगा कि डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क बेसिकली है क्या. फिर लास्ट में हमारे डूज एंड डोंट्स हैं एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ दिस डोमेन. सो ये स्लाइड तो वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि AI is the skill of the century. We all know it is one of the greatest invention of 21st century. So further, Harshit Bhaiya will explain and it have a great things to say. Okay, first of all, I'm audible now, सब लोगों को. Okay, you guys can ask your doubts in chat box and you can raise your hand or like react. Okay, so now अब यहाँ पे एक word लिखा है futuristic बिल्कुल सेंटर में है ना. That means AI is futuristic. अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो हमें समझना है कि इससे पहले जो सेशंस थे उनमें जैसे तुमने अलग अलग चीज़ें करी, वेब डी करा, डीएसए करी है ना, उनके बारे में तुमने पढ़ी चीज़ें. अब देखो मेन डिफरेंस क्या होता है एक नॉर्मल मशीन में जो एक कोड करके तुमने बनाई है और एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन में. तो एक नॉर्मल मशीन क्या करती है, तुमने उसको इनपुट प्रोवाइड करा, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करे, ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम वहाँ पे रन कर सकता है.
जैसे इंसर्शन का कोई एल्गोरिदम हो गया इंसर्शन के लिए, ठीक है, सॉर्टिंग के लिए कोई एल्गोरिदम हो गया, कोई भी एल्गोरिदम कर सकता है वहाँ पे रन, एंड वो तुम्हें एक आउटपुट निकाल के देती है मशीन। वेयर एज एक इंटेलिजेंट एजेंट कौन होता है? जैसे अगर तुम एक इंटेलिजेंट इंसान कब हो, जब तुम नॉट जस्ट एक इनपुट पे कुछ लगा के तुम आउटपुट बना रहे हो, बट ऑल्सो तुम एक चीज और कर रहे हो कि तुम्हें अगर एक इनपुट दिया है और एक आउटपुट दिया है कि उस इनपुट से ये आउटपुट निकल रहा है, तो तुम उसके पीछे का लॉजिक भी डिड्यूस कर सकते हो। सो वो लॉजिक डिड्यूस करने की जो एबिलिटी है ना, लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी जिसे कहते हैं, वही बेसिकली इंटेलिजेंस को फॉर्म करती है। दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम ऐसी मशीन्स चाहते हैं जो खुद से लॉजिक बना सके। अब उसका फायदा क्या है? क्योंकि देखो, मशीन के जो फायदे भी तुम्हें अंकित समझाएगा, उसमें यू विल गेट टू नो कि फायदा क्या होता है कि मशीन का ओवर अ ह्यूमन, कि वो कैसे एफिशिएंटली बिना थके काम कर सकती है। बट उस फायदे की वजह से अब यहाँ पर हमें इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जो अभी तक साइंटिस्ट ऐसे लॉजिक हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं कर पाए हैं डेटा सेट्स को देखकर, वहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आता है, ठीक है। देन इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे चैटबॉट्स हैं, तो चैट जीपीटी वगैरह ये सब तो सबको पता ही होंगे चैटबॉट्स, ठीक है। ये तुम्हारा एनएलपी वगैरह का यूज़ करते हैं, ये आगे डिटेल में बताएंगे डीप लर्निंग एनएलपी के टाइम पे। देन मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो करेंसी, रोबोट असिस्टेंट्स, ये बेसिकली एप्लीकेशंस, फीचर्स, टेक्निक्स, ये सब मेंशन्ड है, ठीक है, इस डायग्राम में। नाउ आई लाइक प्रासुक आगे फिर से कंटिन्यू करो। थैंक यू अर्षित। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक साइड में तुम्हें छोटी सी पिक्चर दिख रही होगी कि तुम्हारे थॉट्स क्या है एआई पे। सो इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर योर थॉट्स, सो डू यू थिंक इट्स वन वे टिकट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड और द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। तो मैं चाहता हूँ यार, तुम में से जो सोचता है ना कि एआई जो है वो हर चीज का सोल्यूशन है, वो एक बार रिएक्ट कर दो यार, हैंड्स अप करके, कोई इमोजी भेज के रिएक्ट कर दो मीटिंग में, ठीक है। मेरे को रिएक्शंस कम दिख रहे हैं, बट ओके। तुम मोस्टली सोचते हो कि एआई सब कुछ खत्म कर देगा, ठीक है, कोई नहीं, खत्म कर देंगे, सबसे पहले तुम ही खत्म होगे। आगे देखते हैं। सो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हम उसको ट्राई करते हैं मशीन के अंदर प्रोग्राम करने के लिए। as it is written in my first line, AI allows the machine to simulate human intelligence to solve problems. So जो हमारी प्रॉब्लम्स है, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स हो गई, उसको सॉल्व करना है एआई के थ्रू। जैसे हमारा पहले था, हमने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई हमारा वॉइस असिस्टेंट आएगा, हम बोलेंगे हमारा काम हो जाएगा, हमें खुद करना नहीं पड़ेगा। तो उन सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती है, जो एआई इजीली कर सकता है, ताकि हम अपना टाइम और इम्पोर्टेंट चीज़ों को दे सके, तो उसके लिए हमने एआई इंट्रोड्यूस हुई है। सो एआई का मेन टास्क है कि कॉम्प्लेक्स जो वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स जितने भी परफॉर्म्स है, ऑपरेशंस है, उनको सिंपल बनाना ह्यूमंस के लिए, कि दैट ह्यूमन एक टच में वो वाला ऑपरेशन कर सकता है, उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एआई जो है हमारा ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को हम चाहते हैं कि मिमिक कर सके। जैसे हम डिसीजंस लेते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने एआई हमारा एजेंट बनाया है, तो हम चाहते हैं कि वो भी सेम डिसीजंस ले हमारे साथ जो हम सोचते हैं। तो जो हमारा एआई है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा पे वर्क करता है। एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, एक सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। तो इनमें बेसिकली ये है कि जो स्ट्रक्चर्ड है वो ये है कि कितना डिटेल्ड है, कितना वेल एक्सप्लेन्ड है, कितना वेल लेबल्ड डेटा है। एंड अनस्ट्रक्चर्ड है कि हमारा डेटा है बिल्कुल भी ढंग से लेबल्ड नहीं है, कुछ उसमें ना हेडिंग है, ना कॉलम्स है, ना रोज है, बस डेटा इधर उधर रैंडम है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा है कि यार जो एआई है ना वो लॉजिक्स तो यूज़ करेगा, तो लॉजिक्स में वो कभी डिसीजन ट्रीज वगैरह यूज़ करता है कुछ, और सेल्फ लॉजिक्स बनाते हैं। हम आगे देखेंगे कि मल्टीपल मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग के जो हमारे यूज़ होते हैं। सो एआई की जो डेफिनेशन है ना, उसमें बेसिक मेन 4 चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा एआई एजेंट जो है वो करे। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ एजेंट का क्या काम होता है। एजेंट का काम होता है अब वो एनवायरनमेंट को देखे, वहाँ से इंफॉर्मेशन परसीव करे, फिर वो कोई एक्शंस परफॉर्म करे एंड बस एनवायरनमेंट में चेंजेस करे, ठीक है ना। जैसे अभी का ले लो, मैं चाहता हूँ कि मीटिंग में थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रहे, सो इसलिए मैं मीटिंग से इनपुट ले रहा हूँ, हम परफॉर्म कर रहे हैं, मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अगर कोई मान लो कोई अगर जना आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको म्यूट कर सकता हूँ, मैं उसको मीटिंग से किक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो होता है एजेंट का काम कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है उससे इनपुट्स लेकर। सो उसके बाद तो हम चाहते हैं एजेंट, हमारे एजेंट की ये 4 प्रॉपर्टीज हो हमारे एजेंट पे। पहला तो है कि वो थिंक ह्यूमनली, कि वो हमारे जैसा सोचे। यार ह्यूमंस जैसा सोचते हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं चीज़ों को,
तो हम चाहते हैं कि वो मिमिक कर सके कि हम कैसा सोचते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा थिंक रैशनली। रैशनली का मतलब होगा कि उसको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम ह्यूमंस है, हम बहुत बारी सही गलत नहीं सोचते, हम अपनी पसंद का करते हैं, हम बायस तरीके से वर्क करते हैं, यार वो मेरा दोस्त है मैं उसके लिए करूंगा, वो नहीं है मैं उसके लिए नहीं करूंगा, हम वैसा काम करते हैं। तो हम नहीं चाहते हमारा एजेंट ऐसा करे, तो हम चाहते हैं हमारा एजेंट रैशनली सोचे। एंड तीसरा है एक्ट ह्यूमनली, सेम चीज, कि हम चाहते हैं कि जैसे हम एक्ट करते हैं हमारा एजेंट भी वैसे रोबोट या फिर एजेंट हमारा वैसे एक्ट करे। हम अगर जैसे चलते हैं जैसे फोटो में भी है, हम भी चाहते हैं हमारा एजेंट भी जो है वो रोबोट भी है वो हमारी तरह चलने की कोशिश करे। चौथा है एक्ट रैशनली, सेम थिंग जैसे थिंक रैशनली था, हम चाहते हैं कि वो सही गलत को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सोच रैशनल एक्ट करे, अपनी चीजें ऐसे करे कि वो ज्यादा गलत भी नहीं होनी चाहिए और सही बीच में होनी चाहिए, दोनों चीजों को सोच समझ के। फिर हम देखते हैं कि यार मशीन लर्निंग क्या होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझ लिया, अब मशीन लर्निंग भी समझना पड़ेगा। तो मशीन लर्निंग क्या होता है कि जो हमारा, मान लो हमारे पास इतने साल हो गए तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, पास्ट डेटा। तो हमारा मशीन लर्निंग क्या होता है, हम हमारे मॉडल को या फिर मशीन को हम वो डेटा फीड करते हैं, वो लर्न करता है, उस डेटा के अंदर पैटर्न्स ढूंढता है, चीजें अलग अलग ढूंढेगा, एंड फिर उस डेटा के ऊपर हमारे फ्यूचर में प्रिडिक्ट करेगा या फिर नए आउटपुट्स देगा। ओके, सो गोल क्या है कि हमारा डेटा को हमने करा, इसका गोल क्या है कि जो हमारा आउटपुट है एक तो उसमें एक्यूरेसी है, एंड हमारा जो रिपीटेटिव टास्क है सेम चीज वो यार बच जाए। अब मैं नहीं चाहता कि मैं एक बंदे को बैठाऊं और एक ही काम करवाता रहूं उससे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार एक मशीन बैठा दी उसकी वजह कि यार तू ये काम अपना आप कर ले मशीन, तो एक तो उसकी मशीन को वो थकेगी नहीं, हमेशा काम करती रहेगी, तो एक वो एडवांटेज आता है। उसकी कॉस्ट इनिशियली तो बहुत हाई होगी पर उसके बाद रनिंग कॉस्ट फिर भी कम होती है। बंदे को तो हर महीने सैलरी चाहिए ही चाहिए ना, छुट्टी भी चाहिए ही चाहिए, मशीन को नहीं चाहिए, उसको सैलरी छुट्टी नहीं चाहिए, उसको बस चाहिए कि यार मेरी बैटरी फुल रहे, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद होता है हम मशीन को अलग अलग टास्क के लिए बनाते हैं कि यार ये करना है वो करना है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में जैसे मैं तुम्हें बेसिक सा, जब तुम शुरू करोगे मशीन लर्निंग एक बेसिक प्रोजेक्ट होता है डॉग ब्रीड क्लासिफिकेशन करके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम एक इमेज देंगे एंड उस इमेज के ऊपर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यार इस डॉग की ब्रीड क्या है। तो मान लो मेरे पास 50,000 इमेजेस है, तो मैं 50,000 इमेजेस अपने कंप्यूटर को फीड करता हूँ कि यार ये तो इमेजेस ले, और मैंने हर इमेज के साथ लेबल दे दिया कि ये इमेज इस वाली ब्रीड को बिलोंग करती है। तो मशीन क्या करेगी, उस इमेज को देखेगी, स्टडी करेगी, उसमें पैटर्न्स ढूंढेगी कि इसके बाल यहाँ है, इसका कलर ये है, इसकी आंखें ऐसी है, एंड फिर उसके बाद वो अपने पास एक डेटा अपना बना लेगी। जैसे हमारा ब्रेन होता है एक अपने अंदर एल्गो बना लेता है, ये ऐसे ऐसे ऐसा है तो ये होगा। तो मशीन लर्निंग भी सेम करता है, हमने इसको फीड करा, वो अपने आप को ट्रेन करेगी कि यार ठीक है मेरे को ये डेटा मिल गया, मैंने अपनी ट्रेन हो गई हूँ। तो अब मैं उसको कोई भी नई इमेज दूंगा ना, तो वो बता देगा कि ये इस ब्रीड का है। मैंने उसको लैब्राडोर की इमेज दी, उसने बता दिया लैब्राडोर है। जर्मन शेपर्ड की इमेज दी, उसने बता दिया जर्मन शेपर्ड है। तो ये होता है बेसिक मशीन लर्निंग का, कि हम उसको एक इनपुट देते हैं और वो एक आउटपुट प्रोवाइड करती है। एंड जो बीच का टास्क होता है, जो हम एल्गो होती है, वो मशीन खुद सीखती है। हम नहीं बताते कि एल्गो यूज करनी है, बताते हैं पर ऐसा नहीं है कि हम पूरी 1 to 1 चीजें फिट करते हैं, हम बस ये बताते हैं कि ये अप्रोच यूज करनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप बनाता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे वर्क होता है सारा का सारा, ठीक है ना। और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जिसमें लास्ट लाइन है, ML systems rely on statistical models to learn and can self correct when provided with new data. That means हम at any point उसको नया डेटा दे सकते हैं। तो उससे क्या है, उसकी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। मैंने पहले 50,000 दी, फिर उसके बाद मैंने 20,000 और दे दी, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा हायर एक्यूरेसी अचीव होगी। सो मशीन लर्निंग के टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं बेसिक्स। एक होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जो ये पहले 3 है ये बहुत सिमिलर है। ये बस हमारा वर्क होता है कि हमारा डेटा कैसा है, ये हमारे उससे रिलेटेड होते हैं कि यार हमारा डेटा कितना ज्यादा लेबल्ड है, प्रॉपरली डिटेल्ड है। अगर सब कुछ हमारा है प्रॉपर एक्सेल शीट में सब कुछ होता है, तो हम उसको सुपरवाइज कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा रैंडम डेटा है, बहुत ही ज्यादा रैंडम, कुछ लेबल नहीं है, कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या है, उसको हम अनसुपरवाइज कह देते हैं। फिर आता है सेमी सुपरवाइज।
सेमी सुपरवाइज लर्निंग होती है जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों के बीच में लाई करती है। एंड चौथी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो होती है कि मशीन को हम इनपुट्स देते हैं कि यार तू ये कर सकता है, एंड मशीन खुद सीखती है कि ऐसे गाड़ी चलाना हो गया, यार तुम लेफ्ट राइट है, सामने पीछे जा सकते हो, तो मैंने मशीन को ये 4 इनपुट दिए, तो मशीन खुद सीखेगी कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाऊं बाय मल्टीपल ट्रायल एंड एरर मेथड्स। ठीक है, अब इसके आगे अंकित समझाएगा कि क्या है। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? ओके, जैसा कि प्रासुक ने बताया, मशीन में हम इनपुट देते हैं, एल्गोरिथम सप्लाई होती है और वो हमें आउटपुट देती है। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनल उसका प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली, वो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस होता है गैदरिंग डाटा, जो हम हमें मॉडल बनाना है उसका डाटा लेते हैं। डाटा बहुत लंबे लंबे होते हैं, 1000, 10,000, 1,00,000 लाइन्स, कितने का भी हो सकता है। फिर हम उसमें करते हैं डाटा क्लीनिंग। अब जैसे 1000 लाइन्स का डाटा है, उसमें हो सकता है कई जगह मिसिंग वैल्यूज हो। अब हम अगर मशीन में मिसिंग वैल्यूज वाला डाटा डाल देंगे तो वो एरर जनरेट कर सकता है या कुछ बग कर सकता है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं। डाटा रैंगलिंग बेसिकली होता है टू प्रोसेस डाटा टू मिनिमाइज एरर्स एंड मेक इजी टू एनालाइज। फिर उसके बाद डाटा एनालाइज करने के बाद हम ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट अलग अलग बनाते हैं। मान लो 1000 लाइन्स का डाटा है हमारे पास, तो उसमें से हम पहले 20 लाइन का टेस्ट मॉडल बनाएंगे, उस 20 लाइनों को ट्रेन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे कि हमारा जो मशीन हमने ट्रेन की है उस 20 लाइनों पर एल्गोरिथम्स अप्लाई करके वो सही चल रही है। अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है, फिर बाकी की जो 800 लाइनें हैं हम वो जो उसको ट्रेनिंग मॉडल करके उस पर एल्गोरिथम्स अपनी अप्लाई करते हैं और फिर मशीन को हम डिप्लॉय करते हैं। नेक्स्ट, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। वर्चुअल असिस्टेंट्स हमने देखा होगा, गूगल का गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट के पास होता है कॉर्टोना, एप्पल के पास सीरी एंड अमेजोन के पास एलेक्सा। तो ये बेसिकली क्या होता है, हम इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे एलेक्सा प्ले दिस बॉलीवुड सॉन्ग, तो वो हमारी लैंग्वेज को डिकोड करता है और वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सॉन्ग प्ले कर देता है। तो इसमें आपने देखा ह्यूमन की जो मेहनत है वो कम हो गई। हमें सिर्फ एक लाइन बोलनी है, प्ले दिस सॉन्ग, वो अपने आप प्ले कर देगा। तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो बाद में हर्षित आपको समझाएगा, वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट, जैसे आपने देखा होगा, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करा, मान लो कोई फर्नीचर सर्च करा आपने, अगले दिन से वो आपको उस आपने जैसे बेड सर्च करा तो वो उसी से रिलेटेड डाइनिंग टेबल या फर्नीचर और फर्नीचर आपको रिकमेंड करने लग जाएगा। तो वो उसके पीछे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ही होती है। अब आपने अमेजोन पर जैसे कोई प्रोडक्ट सर्च करा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में अगले दिन उसकी एड्स आने लग जाती है। ऐसी इन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह जितने भी मूवीज है, मान लो आपने मूवी सर्च करी तो वो अपने आप जो पीछे बैकएंड में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो अप्लाई करी होगी वो अपने आप एनालाइज कर लेगा। मान लो आप कॉमेडी जॉनर की मूवी ज्यादा देख रहे हैं, तो वो आपको आगे कॉमेडी जॉनर की जो मूवी होती है वो रिकमेंड करने लग जाएगा। तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग ही होती है। नेक्स्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला सबने सुना होगा। अब इसमें क्या होता है, कार में हर जगह कैमराज एंड सेंसर्स फिट कर दिए जाते हैं। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, सामने कोई गाड़ी आई तो वो कैमरा अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि इतना डिस्टेंस पर गाड़ी है, तो उसको ब्रेक मारना है या लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। ऐसे ही कैमराज लेफ्ट राइट में भी लगे होंगे, वो ट्रैफिक सिग्नल्स या कोई साइन बोर्ड्स है उसको सारा कैप्चर करेगा, एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट डिसाइड करेगा, मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है। तो आपने सुना होगा आजकल बहुत काम चल रहा है इंडिया में, तो इतना नहीं, बाहर सेल्फ ड्राइविंग कार यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई। नेक्स्ट, नाउ मशीन लर्निंग रोड मैप, नाउ ओवर टू हर्षित। ओके, हाय गाइस, आई एम ऑडिबल नाउ? और सब लोगों को कैसी लग रही प्रेजेंटेशन? बढ़िया चल रही है ना? रिएक्ट कर दो एक बारी, बता दो हटफट। गुड, ओके, लेट्स गो। सब रोड मैप के बारे में बात करते हैं हम। अब देखो, हमने ये तो सीख लिया कि एआई क्यों चाहिए, ठीक है? तो उसने बताया हर जगह चाहिए, टेस्ला कार से लेकर तुम्हारे फोन्स के अंदर हर जगह एआई है।
अब कैसे सीखेंगे हम, ठीक है, बीइंग इंजीनियर्स हम कैसे सीख सकते हैं? सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, सबसे पहले तुम्हारा मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जिसमें जैसे तुम्हारा वेक्टर्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, ठीक है, और जितने भी तुम्हारे बेसिक अलजेब्रा होती है, ठीक है, वो सब तुम्हें आना चाहिए, और थोड़ी बहुत कैलकुलस भी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिक्स सम एटसेट्रा। उसके बाद डेटा फॉर्मेट्स, एक्सेल, बीआई, डेटाबेस बेसिक्स, ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि तुम्हें बताओ कि तुम्हारा डेटा कहाँ रखा है और किस फॉर्म में रखा है। जैसे अगर एक एक्सेल शीट है, ठीक है, अब तुम्हें अगर एक्सेल चलाना आता है तो भी तुम उस डेटा को ऑपरेट कर पाओगे ना, तो भी तुम ये जज कर पाओगे कि कौन से कॉलम में तुम्हारा इनपुट डेटा है, कौन से कॉलम में तुम्हारा आउटपुट डेटा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज पाइथन। पाइथन में पाइथन के बेसिक्स, लाइब्रेरीज, वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड जुपिटर की नोटबुक बेसिकली ऑपरेट करनी आनी चाहिए। जुपिटर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, गूगल कोलैबोरेटरी एटसेट्रा, ठीक है, तो मतलब उनमें से कोई भी सीख सकते हो, बट बेसिकली पाइथन क्यों आना चाहिए पर्टिकुलरली, बिकॉज राइट नाउ जितना AI/ML की प्रोग्रेस हो रही है, उसमें जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, जैसे तुम्हारी पाइथन की जो लाइब्रेरीज है उनके अंदर वो मेंशन्ड है उनके एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब जैसे तुमने DSA में पढ़े हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर जैसे होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब तुम्हें अगर वो इंपोर्ट करने हैं, अब मान लो तुम्हारे पास पाइथन है, ठीक है, पाइथन में तुमने सीधे कोड डाला, डिसीजन ट्री क्लासिफायर उठाया कहीं से, एंड डायरेक्टली वो लाइब्रेरी से उसका पूरा कोड आ गया, तुम्हें बैठकर उस एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोड नहीं लिखना पड़ रहा। तो बीइंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वर्किंग इंजीनियर, ठीक है, डेटा इंजीनियर, अगर तुम एज एन डेटा इंजीनियर काम कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए, ताकि तुम्हारा टाइम बच सके वो वाला, जिस टाइम में तुम वो डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोड लिख रहे हो, इसलिए वी यूज़ पाइथन। देन डेटा सोर्सेज, जैसे डेटा माइनिंग, वेब स्क्रैपिंग, ये चीज़ें तुम्हें क्यों आनी चाहिए, क्योंकि डेटा उठाओगे कैसे। अब तुम्हें किसी ने बोल दिया कि तुम्हें एक ऐसा ML का मॉडल बनाना है जो करेक्टली कोई चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाए। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, कोई सपोजली किसी लॉयर ने तुमसे बोला कि तुम्हें उसके लिए एक ML का मॉडल डिज़ाइन करना है, तो तुम्हें उसके लिए जो पहले के केसेस रहे होंगे वो केस स्टडीज उठानी पड़ेंगे ना। अब वो केस स्टडीज तो इंटरनेट पे हैं, तो उठानी आनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यू शुड लर्न डेटा माइनिंग, वेब स्क्रैपिंग एटसेट्रा। बाकी हाँ, कैगल पे प्री डिफाइंड डेटा सेट्स होते हैं जो कि काफ़ी क्लीन भी होते हैं एंड ईजी टू यूज़, तो बिगिनर्स के लिए तुम कैगल भी यूज़ कर सकते हो, एंड डेटा मैनिपुलेशन तो आना ही चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास आती है फोर्थ स्टेज, दैट इज मशीन लर्निंग टर्म्स। तुम्हें मशीन लर्निंग की टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है, एंड देन मशीन लर्निंग मेथड्स पता होनी चाहिए। मेथड्स में क्या होता है बेसिकली, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दो टाइप की लर्निंग्स हो गई। देन एंसॉम्बल एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स, ये बेसिकली क्या है, कैटेगरीज में डाल दिया हमने, ठीक है। सुपरवाइज क्या है कि तुम मशीन को ऐसा बता रहे हो, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या है कि जैसे क्लस्टरिंग वाले हो गए, तो उसमें अनसुपरवाइज, उसमें डेटा थोड़ा जो है रैंडमली लाइक होता है, इधर उधर बिखरा होता है, उसमें तुम फिर क्लस्टर्स बना रहे होते हो, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर वगैरह, तुम बहुत चीज़ें पढ़ोगे आगे, तो ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। देन मशीन लर्निंग के टूल्स होते हैं कुछ, जैसे मैंने बताया, तुम्हें अपना टाइम सेव करना है, और क्यों करना है, क्योंकि तुम्हारा डेटा सेट इतना लार्ज होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर इफ आई एम वर्किंग ऑन एन Amazon डेटा सेट, तो वो डेटा सेट इतना लार्ज होता है उनका कि उस पर अगर तुम्हें सेंटिमेंटल एनालिसिस करना है, तो तुम्हें 8 से 10 घंटे डेटा को डाल के मॉडल को ट्रेन करने में लग रहे हैं। तो तुम खुद सोचो तुम्हें कितना टाइम अपना बचाना है, वहाँ पर हार्ड कोड करने के बजाय तुम्हें शॉर्टकट्स यूज़ करना है। तुम्हें टूल्स पता होने चाहिए, जैसे साइकिट लर्न, स्पेसी, NLP के लिए, ठीक है, कोलैब हो गया, तो ये सारे बेसिकली टूल्स है जिनके ऊपर तुम काम करोगे, ठीक है। इनसे तुम्हारा टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, एंड इफेक्टिवली तुम मॉडल्स डेवलप कर पाओगे। देन मूविंग ऑन टू द फाइनल पेज ऑफ दिस रोड मैप, डीप लर्निंग की कुछ स्टेजेस आती हैं, ठीक है। अब डीप लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डीप लर्निंग कहाँ आती है, जहाँ पर तुम्हारा नॉर्मल AI से काम नहीं बन रहा होता, ठीक है। नॉर्मल जो तुम्हारा AI/ML है, उसकी स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं फेल हो रही होती है, या उतनी एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रही होती। वो हम आगे डिस्कस करेंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू गाइस अबाउट डीप लर्निंग एंड ऑल, ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क्स पहली चीज़ है डीप लर्निंग के अंदर, क्योंकि डीप लर्निंग का बेसिक पर्पस, बेसिक मीनिंग यही है कि उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं बहुत सारे, विच आर बेसिकली मेड टुगेदर, एंड एक साथ वो बहुत सारे न्यूरॉन सिंक्रोनी में काम करते हैं, सिनर्जी में काम करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द नेटवर्क्स, देन उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर दो एग्जांपल लिखे, लॉस फंक्शन एंड एक्टिवेशन फंक्शन। फंक्शन तुम्हें तब समझ आएगा जब मैं तुम्हें न्यूरॉन बताऊंगा, तो मैं आगे बताऊंगा न्यूरॉन, देन यू गाइस कैन रिलेट की फंक्शन क्या होता है। देन आर्किटेक्चर पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या क्या होते हैं, जैसे CNN, RNN, GAN, NEAT, इन सब की फुल फॉर्म्स, जैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, तो इनकी फुल फॉर्म्स एंड इनके मीनिंग वगैरह भी तुम आगे पढ़ोगे। एंड देन टूल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, टेंसरफ्लो, पायटॉर्च, टेंसरबोर्ड, MLflow। तो ये रोड मैप किसलिए होता है कि एक तरह से तुम्हारे पास ये होगा सिस्टमैटिकली तुमको कैसे मूव करना है, कि अगर तुम्हें मैथ्स आता है तो तुम्हें वेक्टराइजेशन आता है, वेक्टराइजेशन आता है तो तुम वर्ड टू वेक्टर के अंदर समझ सकते हो कि वेक्टर किस तरह से बन रहे हैं, और उन वेक्टर के बीच में कैसे कंपैरिजन हो रहा है वर्ड्स का, है ना। देन उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे न्यूरल नेटवर्क्स, उनकी फंक्शनिंग आनी चाहिए, ताकि तुम उन मॉडल्स को ट्रेन कर सको, ताकि तुम्हें पता हो कि पर्टिकुलरली तुम्हारे मॉडल के अंदर तुम्हें कितनी लेयर्स लगानी है। ओके, तो इन चीज़ों को समझने के लिए तुम धीरे 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 जो है स्टेप्स लेके, एंड देन यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स। ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट अंकित टू कैरी फॉरवर्ड।
देयर आर सम रिसोर्सेज जहाँ से हमने रोड मैप में बनाया, आप वहाँ से ML एंड AI इस लिंक पर विजिट करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो आप देख लेना, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आफ्टर मीट। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि प्रासुक ने बताया, कोई एम्प्लॉय है ह्यूमन, उसको हमें हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, छुट्टियां भी देनी पड़ेगी, लेकिन मशीन को एक बार हमने ट्रेन कर दिया तो ना उसको बस इनिशियली कॉस्ट आएगी, लेकिन वो करती रहेगी, कभी थकेगी नहीं। इट्स अ मेन एडवांटेज। उसके बाद रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। ह्यूमन कोई काम कर रहा है, देयर आर हाई चांस कि कुछ एरर आ जाए, लेकिन मशीन लर्निंग, वो मशीन लर्निंग के थ्रू मशीन को हम ट्रेन करेंगे, वो एरर बिल्कुल मतलब आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा कंपेयरिंग टू ह्यूमन। जीरो रिस्क, नो डाउन टाइम, अनबाइस्ड डिसीजंस एंड परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स फास्टर विद कंसिस्टेंसी, हाई एक्यूरेसी, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें जैसा कि बताया, इनिशियली मशीन को ट्रेन करने के लिए टाइम एंड रिसोर्सेज चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, इसका चैट जीपीटी सबने सुना होगा, जैसे सुना है ना, कितने इंजीनियर्स की जॉब खा गया। इट्स अ मेन डिसएडवांटेज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेक्स ह्यूमन लेजी, नो एथिक्स, इमोशनलेस। अच्छा, रोबोट मूवी आप सबने देखी होगी, रोबोट मूवी चिट्टी। उसमें आप देख सकते हो जो एक सीन था जिसमें वो गोल गोल घूम के उसकी इंस्ट्रक्शंस पर वो कहता है वसीकरण को चाकू मार दो, तो वो ही है, उसमें इमोशंस नहीं है। उसको जिस तरह कमांड दी उसने वो परफॉर्म कर दी, चाहे किसी को मार ही दो, तो उसने इमोशंस नहीं है क्योंकि मशीन के अंदर, तो उसने जो कमांड थी उसको फॉलो कर दी। इट्स अ मेन डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, नाउ ओवर टू हर्षित। ओके तो अब फाइनली मैं बताता हूँ डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, जो मैं अभी सस्पेंस बना के गया था कि क्या होता है न्यूरॉन, क्या होते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। ओके सो लेट्स गेट इनटू इट। देखो अभी अभी उसने एक चीज़ बोली थी कि जैसे एक तो एथिक्स, इमोशंस, ये चीज़ें मशीन्स में नहीं होती है ना। अब हम वही थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हम मशीन के अंदर बेसिकली वो ह्यूमन टच, एक ह्यूमन एक इंटेंशन ला सके, ठीक है। अब वो सब कैसे पॉसिबल है, तो ह्यूमंस, अब हमारे पास ऐसा क्या है जो मशीन के पास नहीं है, ठीक है। व्हाट यू गाइस थिंक, यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्सेस टू। ओके सो क्या लगता है तुम्हें कि ह्यूमंस के पास ऐसा क्या है जिससे बेसिकली हमारी प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, हमारा सीपीयू क्या है। ओके हमारा सीपीयू इज आवर ब्रेन, है ना। और हमारा ब्रेन किससे बना होता है, न्यूरॉन्स से। सो यहाँ पर एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ठीक है। अगर हम ऐसा ही कुछ कॉपी कर दें किसी मशीन के अंदर, जैसे हमारा न्यूरॉन किससे बना है, बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबने बड़ी होगी बचपन में, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब हम उसकी जगह एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से हमारे पास एक न्यूरॉन बन जाए, ठीक है। तो हम सिलिकॉन चिप्स के ऊपर एक न्यूरॉन बना रहे हैं बेसिकली, है ना। तो मशीन कैसे सोचेगी, जैसे हम सोच रहे हैं ब्रेन से, बट दैट इज नॉट अ सिंपल टास्क, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक न्यूरॉन तो है नहीं, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो कि आपस में कनेक्टेड है ना। अब वो कनेक्टेड कैसे हैं, जैसे एक न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसकी नर्व एंडिंग होती है, वो अगले के डेंड्राइट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें हाथ में दर्द हुआ, हाथ से लेकर तुम्हारे न्यूरॉन्स जुड़े हैं पूरा ब्रेन तक, है ना। तो तुम ऐसा कोई गर्म चीज तुमने छुई, ठीक है, लैपटॉप बर्न कर रहा है मान लो, तुम्हारा ओवरहीट हो गया, ठीक है, तुमने एकदम टच किया, तुम्हें सेंस हो गई वो चीज़, तुमने अपना हाथ पीछे उठा लिया, ठीक है, हाथ में तुमने फील करी वो चीज़, ब्रेन तक गई, ब्रेन ने बोला हाथ को पीछे उठाओ, इफेक्टर तुम्हारा, एक्चुएटर क्या है, तुम्हारा हाथ, तुमने हाथ को पीछे हटाया, है ना। तो देखा जाए तो हम लोग भी एक मशीन है, वी आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई मशीन। ऐसी इनऑर्गेनिक से हम बनाते हैं तो वही हो जाता है न्यूरल नेटवर्क। अब देखो उसे समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा न्यूरॉन देखा है, ठीक है, ब्लू कलर का, ये हमारा एक फंक्शनल न्यूरॉन है, यानी कि क्या कर रहा है, एक इनपुट ले रहा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो इसके अंदर लॉजिक स्टेटमेंट्स है उसके बेसिस पे एक आउटपुट दे रहा है। अब देखो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हो सकता है कि हम मशीन को इनपुट आउटपुट फीड करें एंड फंक्शन वो खुद बनाए, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं उसके इनपुट में ही इनपुट आउटपुट वैल्यूज दे दूं तो मुझे आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या देगा बाहर आउटपुट में, एक फंक्शन, ठीक है। यानी कि अगर मैं उसे 2, 3 और 5 दे दूं और से ऐसा दो बेसिकली सेट्स बना के दे दूं कि ये 2 और 3 है और ये 5 है, ये इनपुट है ये आउटपुट है, दो कॉलम्स में, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन जो हमने सीखी, तो फिर मशीन हमको बता देगा कि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज हुआ होगा, ठीक है। बट अगर मैं 2 के साथ 2 दूं एंड रिजल्ट में 4 दूं, अब मशीन कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 + 2 भी 4 होता है और 2 × 2 भी 4 होता है होगा, इसलिए उसके लिए फिर हम 2 न्यूरॉन लगा देंगे, ठीक है। अब ज्यादा न्यूरॉन यानी ज्यादा इंटेलिजेंस, तो हम करते क्या है फिर यहाँ पर मल्टीपल न्यूरॉन्स बनाते हैं
एंड एक लेयर रहती है, जैसे यहाँ पर एक है इनपुट लेयर जो रेड कलर के न्यूरॉन्स है, ठीक है, बड़े वाले डायग्राम में, दैट इज कनेक्टेड टू अ हिडन लेयर। अब हर लेयर में हर न्यूरॉन एक छोटा सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड अलग अलग फंक्शन के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा का पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे तुम मैथ्स करते हो, सबसे पहले बचपन में क्या सीखा था? प्लस करना, माइनस करना, फिर सीखा मल्टीप्लाई करना। स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करना कैसे सीखा? टेबल से, यानी कि कैसे बार बार ऐड करना, ठीक है। तो हमारी मशीन भी वही करती है बेसिकली, एक चीज को दूसरी चीज से मल्टीप्लाई करने की जगह वो उसको उतनी बार उसमें ऐड करती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होगा कि एक फंक्शन परफॉर्म हुआ, देन नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म हुआ, एंड जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स होंगी उतने काइंड ऑफ तुम फंक्शंस परफॉर्म करके एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को समझ के एक आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखो वो तो था बड़ा ही इजी सा न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, बट मैंने क्या बताया, ब्रेन में तो मिलियन बिलियन होते हैं। तो जो हमारे एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं वो कुछ इस तरह का डायग्राम दिखता है न्यूरल नेटवर्क्स का। तो तुम देख सकते हो पर कितनी सारी मल्टीपल लेयर्स हैं और कितने सारे उनके इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। अब इस सब को डिजाइन करने की जब एबिलिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, वही बेसिकली एसेंस बनाएगी तुम्हारे अंदर न्यूरल नेटवर्क्स की एंड डीप लर्निंग की, ठीक है। अब डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क चाहिए क्यों होता है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें। देखो अगर तुम्हारी नॉर्मल मशीन है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्मल मशीन जहाँ फेल होती है वहां पर डीप और न्यूरल नेटवर्क आता है। तो जो ह्यूमन इंट्यूशन हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक मशीन में मैंने ये बोल दिया कि एक वर्ड का एक जो है नंबर असाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो लॉजिकल के क्वेश्चन करे होंगे ना सबने, एनालिटिकल वाले क्वेश्चन 10th 12th में करें, तो एक बारी हैंड रेज करें, कुछ रिएक्ट करो, क्वेश्चन करें जिसमें ऐसा ए को 1 एनकोड कर देते थे, बी को 2 एनकोड कर देते थे, है ना, एंड ऐसे बोलते थे कैट का कोड क्या बनेगा, है ना। यप। सो अब देखो सिंपली अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरे पास एक लेटर का एक नंबर है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर, तो मेरे पास एक वर्ड का एक ही वो बनेगा कोड। जैसे मान लो अगर CAB है तो मेरे पास 312 बनेगा उसका कोड, है ना, कैब। अब कैब के लेकिन मीनिंग तो अलग अलग हो सकते हैं। अब कहीं पर अगर तुम बोल रहे हो तुमने कैब बुलाई, ठीक है, या फिर तुम कहीं पर बोल रहे हो यू आर ड्राइविंग अ कैब, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों कैब का मीनिंग सेम हो गया, यहाँ तो तुम्हारी नॉर्मल मशीन भी लग जाएगी। बट अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती जहाँ पर इनका मीनिंग डिफरेंट आ रहा होता, तो वहां पर तुम्हें चाहिए होता है एक इस तरह का न्यूरल नेटवर्क जो इनको ना सिर्फ उसके बेसिस पे एनकोड करे कि वो लेटर्स क्या है उस वर्ड के अंदर, बट कॉन्टेक्स्ट ले। तो वहां पर हमारे कॉन्टेक्स्ट का जब कंसेप्ट आ जाता है ना, कॉन्टेक्स्ट समझना, जैसे एज ह्यूमंस तुम सिर्फ ये नहीं सोचोगे जो मैंने एक वर्ड बोला, तुम अगर यहाँ पर 15 मिनट से मीटिंग में हो तो तुम पहले की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको इंटरप्रेट करोगे, है ना। सो ये चीज जब तुम एनालाइज करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसी हमारे पास जब मशीन बन जाएगी ना जो कॉन्टेक्स्ट को भी एनालाइज कर रही है साथ में, वही मशीन के अंदर ह्यूमन इंट्यूशन आएगा, एंड देन उसके अंदर बेसिकली वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी हमारी, रैशनली एक्ट करने वाली, ह्यूमनली एक्ट करने वाली, रैशनली सोचने वाली, ह्यूमनली सोचने वाली, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे अब सेंटिमेंटल एनालिसिस है, ठीक है, अब अंकित ने पहले बताया था कि NLP और सेंटिमेंटल एनालिसिस यूज करता है हमारा नेटफ्लिक्स हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या कर रहा है, अब तुमने अगर सपोजिंगली कोई चीज सर्च करी, ठीक है, तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा मान लो नेटफ्लिक्स पे, या स्ट्रेंजर थिंग्स कितने लोगों ने देखा है? रिएक्ट हार्ट्स, स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है? ओके, कुछ कुछ लोगों ने देखा है, नाइस। सो अब तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा, ठीक है, वो कैसा एक तरह का साइंस फिक्शन है, ठीक है, हॉरर के जॉनरा में डालते हैं नेटफ्लिक्स वाले, आई डोंट पर्सनली बिलीव इट्स हॉरर बट ओके, तो काइंड ऑफ, ठीक है, एक हॉरर एंड साईफाई जॉनरा का है। तो उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करेंगे जैसे कि तुम्हें कोई और वेब सीरीज जो उसकी जैसी हो, यानी जिसके जो वर्ड्स है ना एक्सप्लेन करने वाले, जैसे इसके अंदर साईफाई था, कोई और सीरीज इसके अंदर साईफाई है, अगर वो हो तो वो उसको भी तुम्हारी रिकमेंडेशंस में देंगे, है ना, रिकमेंडेशन सिस्टम बनेगा। फिर तुम अगर उसको रिव्यू कर रहे हो, तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा, तुमने रिव्यू करा, तो रिव्यू करते टाइम तुमने जो वर्ड्स यूज करे, इट वाज नाइसली फैब्रिकेटेड, ठीक है, अच्छी सिनेमाटोग्राफी, गुड स्क्रीन प्ले, ये चीजें जब तुम लिख रहे हो तो वो गुड की डिग्री देखेगा कि गुड एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो उस वर्ड को एनालाइज करना ही नहीं, उस वर्ड के पीछे की इमोशन को समझना जब आ जाएगा ना हमारी मशीन को, तो हम उस मशीन को बोलेंगे कि वो कंप्लीटली इंटेलिजेंट है, और वो चीज केवल डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क इन्हीं से आ सकती है, ठीक है। सो देन विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तब तुम्हें एक एसेंस आ गया होगा, एक इंट्यूशन आ गई होगी क्यों हम कर रहे हैं डीप लर्निंग। देखो एंड उसी का एक अब स्टैटिस्टिकल वे में समझते हैं, तो कोई क्वालिटेटिवली तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ठीक है इसलिए जरूरी है ताकि हमारी मशीन स्मार्ट हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं कि वाई डीप लर्निंग, इसकी परफॉर्मेंस जो होती है ना डीप लर्निंग की, वो इंक्रीजिंग डेटा के साथ में कंटिन्यूअली इंक्रीज करती है, ठीक है। डेटा तो कितना इंक्रीज होता जा रहा है, याद है जब बचपन में जब हमारे पास फोन वगैरह होते थे तो याद है ऐसा 1 GB का इंटरनेट पैक आता था, मंथली चलता था वो, ठीक है। एंड अभी तो हमने PC में देखो तो तुम्हारी मंथ की 80 से 100 GB की तो आराम से डेटा यूजेज होगी, है ना। सो डेटा जब इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, सो व्हाई नॉट पुट दोस डेटा सेट्स इनटू गुड यूज, है ना।
तो उसको हम अच्छे यूज में पुट करने के लिए हम डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स लाते हैं, जहां पर हमारी मशीन बड़े बड़े डेटा सेट्स को इंटरप्रेट कर पाती है एंड उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमको प्रोवाइड कर पाती है, ठीक है। एंड तुम्हें पता है मशीन कैसे सीखती है? मशीन इज लाइक, जब तुम डीप लर्निंग के वो बनाओगे ना, एक वेबसाइट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड, उस पर तुम देख सकते हो कि हाउ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क, ठीक है। तो वो कितने एपॉक्स में कैसे कैसे ट्रेन हो रहा है, वो पूरा उसका एक इंट्यूशन पे प्रोवाइड कर देगा वो, ठीक है। उसमें पूरा वेल मेड स्ट्रक्चर है। अब उसमें तुम लोग ये समझ पाओगे देख के कि किस तरह से मशीन तुम्हारी सीख रही है। तो जब छोटी सी मशीन होती है, उसमें थोड़े से 2 लेयर होते हैं, 5 न्यूरॉन होते हैं, तो वो बस थोड़ी थोड़ी इंटरप्रिटेशन कर पाती है, ठीक है। इट्स लाइक अ बेबी हु ग्रोज एंड वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जब तुम मशीन को ऐसे स्टार्टिंग में बोलते हो, जैसे यू गाइस कैन वॉच सम वीडियोस, तो उनमें क्या होता है कि जब ऐसा एक एआई का तुम्हारा मॉडल है, बेसिकली उसको ऐसे रूम एस्केप करना है, ठीक है। तो जब वो स्टार्टिंग में सीखता है ना, वो बस इधर उधर वॉन्डर कर रहा है रैंडमली पूरा 360 डिग्री में। फिर उसे समझ में आया कि नहीं, दरवाजा जो है वो ऐसा एक्स डायरेक्शन की तरफ है, तो मैं वाई में मूव ना करूं। तो फिर वो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेता है एक्स डायरेक्शन की तरफ। देन इट लर्न्स टू जंप, देन इट लर्न्स अलग अलग चीजें, ठीक है। तो ऐसे ही एक मशीन भी ग्रो करती है। उसके अंदर जितने न्यूरॉन्स होते हैं, जितनी हिडन लेयर्स होती है, जितने नंबर ऑफ एपॉक बेसिकली होती है एक आइटरेशन, तुमने जो डेटा सेट पास किया, तो जितनी ज़्यादा उसकी एपॉक्स इंक्रीज होती हैं, उतनी चीज़ें सीखता रहता है एंड अपने एक्सपीरियंस से सीख के वो उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। सो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डेटा, ग्रेटर विल बी द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, समझ में आ रहा सबको यहाँ पे अब तक? समझ में आया तो थोड़ा रिएक्ट कर दो एंड थोड़े से मीम्स देखते हैं अपन। ओके, दीज टू मीम्स आर हियर। अब देखो, कहते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बिलीव करते होंगे लेफ्ट वाली साइड जो लिखा है, AI is going to take us over the world and kill us. Meanwhile, AI be identifying a random person as Obama. Okay, so yeah, it can be dumb. When humans can be dumb, AI can obviously be dumb. Okay, there's no doubt in that. Then right side में एक लिखा है, देखो, people who lost their jobs because of the AI technology. You took everything from me. As Ankit said, कि चैट जीपीटी आके कितनों की जॉब्स खा गया, and robots were like, I don't even know who you are. Of course they don't know everyone because that is not fed into their data sets, है ना। सो यहाँ पर एक बारी थोड़ा सर्वे लेते, कितने लोगों को लगता है कि AI थोड़ा डम है, ठीक है। तो ऐसे एक बारी रिएक्ट कर दो एंड कितने लोगों को, मतलब रेज हैंड कर दो, रेज हैंड जिनको लगता है AI डम है, रेज हैंड। एंड जितने लोगों को लगता है कि नहीं, AI इज वेरी स्मार्ट एंड इट कैन टेक ओवर द जॉब्स वेब वालों की एंड एंड्रॉयड डेवलपर्स की एंड ग्राफिक डिजाइनर्स की, दोस गाइस कैन लाइक रिएक्ट, thumbs up or hearts. Okay, reactions are for like smart, like AI is smart, and hand raises for AIs are dumb. Okay, very mixed response. Okay, we are seeing lesser raised hands. Okay, प्रासुक तुम कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? यार Opinion? मैं तो मानता हूँ AI बहुत स्मार्ट है। Okay. स्मार्ट मानते तभी तो ये फील्ड चूज करी है, डम मानते तो क्यों चूज सही करते? बात है, सही बात है सही ना? बात है, agreed bro, agreed. भाई मैं भी अंकित, यही करता हूँ यार। your opinion? प्लस भाई। My answer also the same. Nice. ठीक है, so as you guys can see, ठीक है, काफी लोगों का मानना है as a smart, and ठीक है, जिन लोगों को भी डम लगता है कोई बात नहीं, in an year or two we'll try कि उनको ऐसा ना लगे। चलो इसी पॉजिटिव नोट पे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अब हम समझेंगे थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स, ठीक है। थोड़ा सा अपना टॉपिक पे वापस आते हैं। दैट वाज अ गुड डिस्कशन, अच्छा इंटरेक्शन है तुम लोगों की तरफ से, रेज करे हैंड्स, रिएक्ट किया, थैंक यू गाइस। ओके, डूज एंड डोंट्स। अब देखो, तुम बीइंग इंजीनियर जब सीखोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, ठीक है। ये नहीं कि तुमने सारा कुछ पढ़ लिया, तुमने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ लिया, तुमने KNN पढ़ लिया, तुमने, ठीक है, सारे एल्गोरिथम्स पढ़ लिए मशीन लर्निंग के, एंड तुम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे। उससे क्या होगा, एल्गोरिथम पढ़ा है, एल्गोरिथम भूल गए, ठीक है। बेनिफिट क्या हुआ? कुछ भी नहीं, है ना। अब गाड़ी चलानी सीख ली 14 दिन, उसके बाद चलाई नहीं 2 साल तक, कोई यूज़ नहीं है ना उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सेकेंडली, ऑलवेज स्टे अपडेटेड टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तुम लोग इसके लिए कोई जो AI के स्पेशली न्यूज़लेटर्स होते हैं उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू गाइस कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी लिंक्स और एनीथिंग इफ यू नीड सम रिसोर्सेज। Okay, LinkedIn we mentioned the message, so you guys can always reach out to any of our us, okay, Prasuk, Ankit or me. Then thirdly, managing and cleaning data sets rigorously. अब ये बहुत प्रॉब्लम आती है जब तुम स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे ना, तो बेसिकली तुम कैगल यूज़ करोगे। कैगल पे ऑलरेडी इतना फिल्टर्ड और क्लीन डेटा होता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट देन जब तुम एकदम से प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगते हो एल्गोरिथम्स को, तो तुम्हें बहुत दिक्कत आती है डेटा क्लीनिंग में, डेटा प्री प्रोसेसिंग में। तो शुरू से एक काम करके चलना कि तुम अपने एंड से पूरा प्री प्रोसेसर का एल्गोरिथम लिख रहे हो, ठीक है। प्री प्रोसेसर के अंदर जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो भी तुम वहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, वो सब होने चाहिए, ठीक है। कि तुम्हें प्री प्रोसेसिंग क्लीनिंग अच्छे से आनी चाहिए डेटा माइनिंग के बाद।
सो दैट अगर तुम्हारा कैगल से भी डेटा सेट है, क्लीनड भी है, तुम उस पर भी अच्छे से क्लीन कर रहे हो, ठीक है, जस्ट टू बी श्योर कि तुम्हारे अंदर वो स्किल है डेटा को क्लीन करने की। अगर कल को तुम्हें ऐसे डेटा सेट्स मिलेंगे जो बड़े ज़्यादा रैंडमाइज्ड होंगे और इनकम्प्लीट डेटा सेट्स होंगे, तो इनकम्प्लीट के लिए जैसे तुम कई बार बहुत सारी चीज़ होती है इनकम्प्लीट डेटा सेट्स के लिए कि तुम 2 अलग अलग फंक्शंस ले सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें तुम आगे बढ़ोगे डिटेल में जब जाओगे इस फील्ड में। देन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना अपने मॉडल्स की नेसेसरी है। ऑब्वियसली दिन ब दिन ज़्यादा नए मॉडल्स आ रहे हैं, ज़्यादा लेयर आ रही है डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। डोंट्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम एंड टू एंड प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, इट इज़ अ वेस्ट, बिकॉज अगर एक छोटा सा पार्ट तुम प्रोजेक्ट का बनाते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि तुम उसके अंदर उससे कोई चीज़ ऐसा सीख नहीं पा रहे खुद के लिए, है ना। अगर तुम यहाँ यूनिट में 1 घंटे बैठे तो तुम्हारे लिए सीखना बहुत जरूरी था, तुमने कुछ गेन किया हो। प्रोजेक्ट से गेन कब करोगे, जब तुम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओगे। सेकेंडली, इररिलेवेंट वेक डेटा को स्क्रैप आउट करना आना चाहिए, वही क्लीनिंग का पार्ट हो गया बेसिकली, ठीक है। इफ यू आर नॉट स्क्रैपिंग इट आउट देन इट इज वेरी बैड थिंग, ओके। सो स्क्रैप आउट करना चाहिए, ठीक है। देन टेस्ट आउट द मॉडल विद इनकम्प्लीट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ये चीज़ नहीं करनी डोंट्स में, ठीक है। यू शुड नॉट टेस्ट आउट अ मॉडल विद इनकम्प्लीट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। टेस्ट आउट यहाँ पर बेसिकली क्या है कि तुमने मॉडल को डिप्लॉय कर दिया किसी एक डेटा सेट पे, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को एक मॉडल बना के दो एंड मैंने तुम्हें अपना डेटा दे दिया जिस पे तुम्हें मॉडल बना के एंड मेरे डेटा को का इंटरप्रिटेशन मेरे को देना है। अब तुम्हारा मॉडल तो ऐसा सही था, प्री मैच्योर सा, है ना। वो कैसा होगा एग्जाम्पल, जैसे तुम किसी छोटे बच्चे को कोई बहुत मुश्किल टास्क दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा ना यूजर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मॉडल को रिग्रेस ट्रेनिंग कराओ, प्रॉपर टेस्टिंग करो, टेस्टिंग की एक्यूरेसी बताओ कितनी है, एंड उसके बाद ही उसको यूज करो रियल लाइफ डेटा पे, ओके। That's it for do's and don'ts. Then there is big bright career in AI/ML as we've discussed it today. Then next slide. That's, I guess, yeah. Now the last thing is future scope. I'd like Prasak to tell this So and wind okay, up with the discussion. so future scope. चलो, हमने अभी कॉलेज में हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो हमने देख तो लिया कि यार AI/ML हम अभी कॉलेज में परस्यू कर सकते हैं, चलो अच्छी बात है। बट हम इसके बाद अब देखेंगे कि यार AI/ML कर लिया हमने, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है यार, कि कहाँ कहाँ हम और आगे अपने फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले तो यार तुम मुझे ये बताओ, तुम बीटेक कर रहे हो, तुम में से कितनों का पर्पस है पैसा कमाना, और कितनों का पर्पस है कि यार लर्निंग के लिए कर रहे हैं। जिसका पर्पस है ना पैसा कमाना, एक बार हैंड रेस कर दो सबके साथ कि यार खूब पैसा कमाना है, अंदर पैसा कमाना है, कि सोचना ना पड़े कि ये खरीदते वक्त के पैसे नहीं है। कितनों का है कि पैसा कमाना है? मेरा खुद का तो है, मैं भी कर देता हूँ हैंड रेस। मेरा भी खुद का है कि भाई खूब पैसा कमाना है, ठीक है ना। चलो नाइस, बहुतों का है, ठीक है, अच्छी बात है। पैसे तो कमाना ही है यार एंड ऑफ द लाइफ। तो यार एक तो AI/ML की फील्ड में अगर तुम खुद भी सोचो, तुम जिस हिसाब से आजकल देख रहे होंगे कि कितना बूम आ रहा है, कितना सब कुछ आ रहा है, कि यार कितनी नई नई चीजें, इनोवेशन आए जा रही है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज्यादा है। अब जो हमारी बहुत पुरानी फील्ड थी, जैसे नई जब शुरू हुई थी, जब जब फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट लूँ, जब वो नया शुरू हुआ था तब उसमें भी सेम चीज थी। लोग नहीं थे, कोई नहीं था, पर वेबसाइट्स बन रही थी। जब हमारी फेसबुक बनी उसके बाद इतनी सारी नई वेबसाइट्स बनी है, तब उसमें खूब इम्प्रूवमेंट थी, खूब स्कोप था। लेकिन अब वो ना बहुत फिल्टर आउट हो गई है। ऑलमोस्ट हर बंदे को वेब डेवलपमेंट आती है, कभी ना कभी कर रहा होता है, जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं कर रखी होती है, आती है। तो उसमें ना एक्सेल करने के लिए तुम्हारे पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कि यार तुम खुद देखना अपने आसपास में कितने लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड कितने लोग AI/ML कर रहे हैं। तो तुम्हें खुद आइडिया लगेगा कि यार इतनों से कॉम्पीट करना कितना मुश्किल है। और इस फील्ड में, अब मैं ये नहीं कहता कि इस फील्ड में लोग कम हैं तो आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुश्किल है, जितनी वेब डेवलपमेंट मुश्किल है उससे कम नहीं है। मतलब उससे कम तो डेफिनेटली नहीं है, ज्यादा है मैं कहता हूँ, बट कम नहीं है। तो ये मत सोचना कि आसान है, बस इसमें क्या है ना, तुम्हें हमेशा लर्न करना पड़ता है। अब वेब डेवलपमेंट में तुमने कर लिया, जैसे इसमें तुम देखोगे ग्रेजुएट एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी में लास्ट कॉलम हायर स्टडीज। हायर स्टडीज हमारा AI/ML के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर है ना, वो सबसे पहले रिज्यूमे में तुम्हारी एक ही चीज पढ़ता है, नाम भी शायद बाद में पढ़ता होगा, वो सबसे पहले पढ़ता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तुम जिंदगी में कुछ भी, कितनी भी कोर्सेज कर लो, कितनी भी सर्टिफिकेट्स ले लो, तुम्हारी सबसे ऊपर लिखी जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बीटेक के बाद लिखा जाएगा बीटेक। बीटेक में इतनी CGPA थी, वो मैटर करती है।
कोई कहे नहीं करते, जितनी सीजीपीए आती है परसेंटेज आती है मैटर करती है, पढ़ना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले वही दिखता है। तो उसको चमकाना कि यार आंखों में वो होता है ना, सारे आ जाए एम्प्लॉयर की यार इस बंदे को तो हायर करना ही है। और स्पेशली इस फील्ड में ना मास्टर्स करना ना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ना सर्टिफिकेट तुम करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उससे ज्यादा ना मास्टर्स वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, वहां तुम्हें समझाते हैं अप्लाई कैसे करना है। जैसे हर्षित ने बताया, तुम्हें अमेजोन का डेटा है, इतना बड़ा डेटा, अब कंपनी तुम्हें इतना बड़ा डेटा तभी तो देगी ना जब वो तुम पे ट्रस्ट करती है। अब अपना डेटा हर किसी को तो नहीं दे सकती हैंडल करने के लिए, तो वो ट्रस्ट पैदा करना स्टडीज के थ्रू आता है। और बाकी अगर हम देखते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंस सर्विसेज हो गई, एरोस्पेस डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब में खुद सोचे तो यार खूब बहुत पॉसिबिलिटीज है। आजकल हम देख रहे हैं कितने स्टॉक प्रिडिक्टिंग एप्स वगैरह आ गए हैं। एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस में ले लो, ऑटोमेटिक मिसाइल्स, यार हमने बस डाल दिया मिसाइल, अपने आप पाथ फाइंड करती हुई वहीं जा रही है, अपने आप वो डिटेक्ट करती है कि कोई है, एयरक्राफ्ट है, कोई बोट वगैरह है नहीं है। एग्रीकल्चर में कितना यूज हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यार डिजीजेस को पहले ही पता लगाना। हम सोचे आज से इतने साल पहले कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं था, अभी भी ढंग से नहीं है, पर अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। कोविड देख लो यार, जब आया था किसी को नहीं पता था कैसे होगी, वैक्सीन डेवलप हुई ना, कैसे हुई, इन सब चीजों की मदद से होती है। अगर ह्यूमन सारी पॉसिबिलिटीज खुद से चेक करे तो आज भी हम उसी फेज में होते लॉकडाउन वाले में। AIML है तो कंप्यूटर हमसे जल्दी चेक कर पाता है सारी पॉसिबिलिटीज, तो इसलिए जल्दी आउटपुट आ पाता है। ऐसे ही अगर हम सिंपली देखें तो ई कॉमर्स वगैरह इन सब में तो है ही हमारा, वो तो जो पहले बताया था इंस्टाग्राम अमेजोन वगैरह में अंकित ने, उसके अकॉर्डिंगली। अब हम देखते हैं कि जॉब रोल्स क्या होते हैं इसमें। जॉब रोल्स एज अ अप्लाइड साइंटिस्ट हो गया, कि यार तुमने जो करी है चीजें सीखी है उसको, जैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटी, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। फिजिक्स तुमने सीखी, अब मान लो मैं कोई फिजिक्स का नया फिनोमिना देख रहा हूँ, कुछ नया ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उसको करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको मशीन लर्निंग के थ्रू देखना करना, उन सब चीजों को अप्लाइड साइंटिस्ट वगैरह में कह सकते हो। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर पहले भी एक्सप्लेन करा था। स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, दैट मीन्स जो हमारे स्टैट्स जैसे कि स्टॉक प्रिडिक्शन जैसे मैंने अभी बताया, वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आता है कि यार मेरे स्टॉक का ट्रेंड देखा मैंने उसके ऊपर। फिर सिस्टम एनालिसिस एंड AI इंजीनियर, कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना, ठीक है ना। तो इसके बाद अब सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल यू बीइंग हियर, इट वाज एन अमेजिंग एंड लवली सेशन, यू गाइस वर वेरी इंटरैक्टिव एंड दैट्स आई लव इट। तो अब डाउट्स लेते हैं, तो जिसको भी अगर डाउट है ना तो एक हैंड रेज कर दो ताकि हम तुम्हें अलाउ कर सके बोलने के लिए, ठीक है। कम ऑन गाइस, AI मेरा डाउट्स तो होंगे पक्का। फर्स्ट टाइम जब देखते हैं, मतलब जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा एक्सपीरियंस, देयर मस्ट बी सम आयुष, डाउट्स। जिनके डाउट्स एक बार उनका माइक ऑन कर देना। कोई भी डाउट है तो हाँ, पूछ लो, हम याशिका हैं इधर। गांधी का डाउट है, उसका माइक मैंने अलाउ कर रखा एंड है। शी देवराज कैन घोष का आस्क भी हर कर डाउट। देना। हाँ, उनका करते हैं पहले। याशिका का, अच्छा ओके, देवराज का ऑन करता हूँ। यू कैन आस्क योर डाउट। Okay. Thank you, everyone. And I'm sure after this, you all are ready to kickstart your journey in the field of machine learning. And if anyone has any doubts, kindly use the raise hand option in the Teams so that we can permit you to use your mic. And I also encourage everyone to scan the QR code so that you can avail the certificate for this session. And meanwhile, you're also requested to take the screenshots of the session and share them using your social media handles and tag NSCC BPIT. हेलो। हेलो, यस आर्यन। एक्चुअली भैया एक बात पूछनी थी। आपने जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो पॉइंट बताया था, उसमें आपने बोला था कि हायर स्टडीज करनी जरूरी है, तो थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं कि मतलब क्यों ऐसा करना जरूरी है, और व्हाई नॉट कि सिर्फ बीटेक करने के बाद आप AI/ML में अपना करियर बना लो डायरेक्टली। ठीक है आर्यन, गुड डाउट। सो एक्चुअली तुम देखो, बीटेक करने के बाद अगर AI/ML में करियर बनाना है, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। 100% जरूरी नहीं होता कि हम मास्टर्स करें,
बट पॉइंट इज दैट, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मशीन लर्निंग में जैसे हमने बताया एक डेटा सेट्स मिलते हैं हमें, है ना। अब देखोगे तुम जैसे थोड़ा सा स्टडी करोगे कि तुम्हें इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स मिलते हैं, कंपनी देती है, तो यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर एंड यू हैव समथिंग दैट कंपनी वांट्स दैट यू आर ट्रस्टेड। ओके, सो अगर मैं आपसे भी पूछूं, अगर आपको कुछ अपना परफॉर्म किसी को टास्क देना है, अगर मान लो एक सीए, अगर आप तुम्हें अपने अकाउंट्स हैंडल करने हैं, तो तुम एक सीए को दोगे या फिर एक तुम ऐसे बंदे को दोगे जिसने सीए नहीं करी बट उसके पास वैसे थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स हैं, तो तुम खुद सोचो कि तुम किसको जिसने दोगे, सीए बता। करते हैं सीए को ना, क्योंकि हाँ क्योंकि तुम्हें पता है कि यार उसने कॉलेज मतलब पढ़ाई करी होगी इस चीज के रिगार्डिंग, ट्रस्टेड है ना। तो वही सेम चीज इस फील्ड में भी अप्लाई होती है कि वो ट्रस्ट डेवलप करवाना कि यार मेरे को हायर करो, मैं ट्रस्टेड बंदा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, वो ट्रस्ट डेवलप कराना। इसलिए थोड़ी सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी हो जाती है। एंड दैट टू इसमें इतनी स्टडीज होती है ना, जैसे अभी हर्षित ने बहुत सारे मॉडल्स वगैरह बताए थे, न्यूरल नेटवर्क्स बताए थे, ये ना कोई बंदा कोई कोर्स से नहीं सीख सकता, इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। अब बीटेक 4 साल की डिजाइन करी गई है, तो कुछ सोच के ही करी गई है ना कि यार 4 साल में तुम सब सीखोगे। तुम कंप्यूटर साइंस किसी भी फील्ड के हो, पर तुम्हें हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज दी जाती है। तो वही सेम चीज जो तुम सोचो 4 साल में जो सीख रहे हो, अब तुम वो किसी एक कोर्स में 3 या 6 महीने में नहीं सीख सकते बीटेक की। तो सिमिलरली जो इसमें होता है, वो एमटेक और जब करते हैं ना, तो वो तब सिखाते हैं। 2 साल की एमटेक करोगे तो 2 साल की जो स्टडीज है तुम वो 2 साल में ही सीख सकते हो, तुम नहीं सीख सकते कोर्सेज वगैरह से। तो इसलिए ना वो जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे है बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। सिर्फ मॉडल को पढ़ लेना नहीं होता, मॉडल को भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब वही है कि अगर मान लो 2 साल का एमटेक कर लिया, उसके बाद से मतलब मैं कर सकता हूँ अगर, या फिर वो ट्रस्टेबल एक बन जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कंपनीज हायर नहीं करेगी बीटेक के बाद, खूब कंपनीज आती है हायर भी करती है, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर पुश। प्लस आई लाइक टू ऐड कि एक चीज़ होती है कि तुम्हारा ट्रस्ट ना, आई एम ऑडिबल ना? हाँ हर्षित। हाँ, प्लस एक चीज़ होती है कि तुम्हारा ट्रस्ट तुम उससे भी गेन कर सकते हो। सपोजिंगली इफ़ यू आर हैविंग लाइक तुम्हारे नाम पे ऐसे रिसर्च पेपर्स है, ठीक है। इफ़ यू डू समथिंग लाइक तुम्हें ना प्री फाइनल फाइनल ईयर में ज़्यादा पता चलेगा, यू कैन डू सम रिसर्च पेपर्स एंड यू कैन डू सम इंटर्नशिप्स ऐसे रेप्यूटेड जगहों पे। तो अगर तुम्हारा ट्रस्ट उनसे बनेगा, वो लोग तुमको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुमने उनके यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा सेट पर काम किया, ठीक है। इफ़ यू आर विनिंग अ हैकाथॉन, इफ़ यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, तो इन चीज़ों तुम्हारी क्रेडिबिलिटी थोड़ी स्ट्रॉग होती है, तुम्हारा रेज्यूमे थोड़ा स्ट्रॉग होता है। सो ये चीज़ें तुम जरूर ध्यान रखना कि लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके 90% केसेस में वो लोग एमटेक एमएस वालों को ही हायर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुमसे। बट वही है कि कम टाइम में ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है, मल्टीपल चीज़ों में एंगेज होकर, है ना। सो ये ट्राई करना बिल्कुल कि अगर तुम्हें एमएलए की फील्ड में आना है, सो यू गो फॉर हैकाथॉन्स, यू गो फॉर रिसर्च पेपर्स, यू गो फॉर जहाँ पर भी तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा है डेटा सेट्स के लिए, ठीक है। जहाँ पर तुम्हें डेटा सेट्स मिल रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन देम, तो उससे तुम्हारी चीज़ रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रॉग होगी, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी स्ट्रॉग होगी। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है भैया, अगर कुछ और डाउट होगा तो मैं फिर आपको रिच आउट कर लूंगा। हाँ जी, कैन रीच आउट एनी टाइम। नेक्स्ट आउट।